Good day to all of you. My name is Harita Sadrani. I am explaining you State Board History subject of Standard 4th. I hope you have heard my explanation of chapter 1 and also understood it very well. Today I will explain you the second chapter from History textbook. The first chapter or the first lesson ended on the note that the work done by the saints or sons helped Shivaji Maharaj in establishing Swaraj. So, in this lesson number 2, we will read exactly what was the role played by these sons that helped Shivaji Maharaj in establishing Swaraj. Okay, lesson number 2, work of the saints. I will read the paragraph and then do the explanation. The tradition of sons that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Jnaneshwar, Sant Chokha Mela was continued by Sant coming from various satire of society. In this group of sons are included Sant Gora, Sant Savta, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant Tukaram, Sant Niroba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Soirabai, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant Kanopatra, and Sant Bainabai Shrodkar was also included. This paragraph tells us that the tradition of sons, matlab Sant Parampara, tradition means Sant Parampara. The tradition of the Sant started in Maharashtra with Sri Chakradhar. He was the first Sant in Maharashtra. संत परंपरा शुरू करने वाले पहले जो संत थे वो थे श्री चक्रधर. धीरे धीरे उनके बाद बहुत सारे संत महाराष्ट्र में हुए. Many sons came in Maharashtra after him, such as Sant Jnaneshwar, Sant Chokha, Sant Gora, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant Tukaram. Also, at that time, many women saints were there, such as Janabai, Soirabai, Nirmalabai, Kanopatra, Muktabai, Bahinabai. Okay, so all these saints came from various satire of the society. Satire means they came from the different background, from different social status. Many of them at that time was not that much educated. बहुत सारे जो लोग थे वो संत जो थे वो educated भी ज़्यादा educated भी नहीं थे. ओके, कोई उनमें से पॉट मेकर था, कोई जो ये श्री चक्रधर थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ही वॉज अ प्रिंस. ओके, तो कोई प्रिंस भी था उन संतों में से, कोई प्रिंस था, तो कोई सन्यासी के बच्चे भी थे. ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई ये एक सन्यासी के बच्चे थे. कोई शॉपकीपर था, तो कोई गार्डनर था, कोई कुम्हार था, पॉट मेकर था. ओके, सो these sons came from the different backgrounds of the society. They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality, and brotherhood. No one is inferior, no one is superior, all are equal. Such was the sentiments that was created by the sons in the minds of people. Similarly, Samartha Ramdas also rendered his work in Maharashtra. जितने भी संत थे सभी ने एक बात सबको पढ़ाई. क्या पढ़ाया सबको? What they taught? Rituals मतलब क्या है? Moral, अच्छी बातें, good
हैबिट्स, ओके, सिखाई। कैसी, कौन सी अच्छी बातें उनको सिखाई? कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया, सहानुभूति, करुणा, काइंडनेस, सबके लिए दया, सहानुभूति, करुणा रखो, काइंडनेस, बी काइंड टू ऑल, नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा मत करो, नॉन वायलेंस, चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान धर्म करो, राइट, लोगों को मदद करो, सर्विस, हेल्प करो लोगों को, सर्विस यहाँ पे जिसे भी ज़रूरत है, जो भी मुसीबत में है उसकी मदद करो, इक्वालिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने तभी लोगों को सिखाया था, ट्रीट एवरीवन इक्वल, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, नो वन इज़ रिच नो वन इज़ पुअर, ओके, ट्रीट एवरीवन एट अ सेम लेवल, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, भाईचारे के बारे में, भाईचारा सिखाया, लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने के बारे में उन्होंने लोगों को सिखाया, नो वन इज़ इन्फीरियर नो वन इज़ सुपीरियर, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई जन्म से बड़ा है ना कोई जन्म से छोटा है, सब ही समान हैं, ऑल आर इक्वल, ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, सीख थी सभी संतों की, जो बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत अच्छी साबित हुई शिवाजी महाराज के स्वराज स्थापना की प्रोसेस में। Such was sentiments that was created by sons in the minds of people. ये जो सब sentiments मतलब भावनाएं, विचार, थिंकिंग, ओपिनियन, ये सब ओपिनियन, विचार तभी संतों ने लोगों के मन में और दिमाग में बिठाए। क्या? नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, कंपैशन, इक्वालिटी, ट्रीट एवरीवन इक्वल, ये सब सेंटिमेंट्स या भावनाएं, विचार लोगों के मन में उन्होंने तभी बिठाए। उस समय एक और संत थे, समर्थ रामदास। ही ऑल्सो प्लेड वेरी इम्पॉर्टेंट रोल in the life of Shivaji Maharaj. Okay? You have to keep in mind the names of some women saints because it is asked in your objective question, name any 2 women saints. So you can write any one of these. The first sant about whom we are going to read is Sri Chakradhar Swami. Sri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. He became an ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. So, several men and women became his followers. The sect he established is known as Mahaanubhav sect. Memorable incidents from his life have been compiled in a book titled Leela Charitra. So, the first saint about whom we are going to read is Sri Chakradhar Swami. He was a prince from Gujarat. You remember I told just now to you, the sons came from the different status. They came from different social background, right? So, Sri Chakradhar Swami was a prince from Gujarat. He became an ascetic, means वो एक तपस्वी बने, मुनि बने, और या हम फकीर, ओके, तपस्वी, मुनि, फकीर, सन्यासी बने, and he came to Maharashtra. He traveled almost all parts of Maharashtra preaching the people equality. उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया या लोगों को क्या उपदेश दिया? उन्होंने इक्वालिटी का, लोगों को सिखाया कि आपस में भेदभाव मत करो, हमें लोगों को साथ में लेकर चलना है. He himself did not believe in any discrimination based either on caste or gender.
वो खुद भी किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे, और चाहे फिर वो कास्ट पे हो या फिर वो हो स्त्री पुरुष का भेदभाव, जाति भेदभाव या स्त्री पुरुष के भेदभाव को वो नहीं मानते थे। उनकी नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान महत्व के थे, और जाति को तो वो बिल्कुल, या जाति भेदभाव को तो वो बिल्कुल मानते नहीं थे। बिकॉज ऑफ दिस preaching of Sri Chakradhar Swami, many men and also women became his followers. उनके इसी सीख के कारण बहुत सारे लोग, स्त्री और पुरुष, उनके भक्त हुए, उनको मानने लगे, राइट? उनकी सीख को वो अपने जीवन में उसका पालन करने लगे, राइट? उनके वो शिष्य बन गए। उन्होंने एक, यहाँ पे सेट मतलब संप्रदाय या पंथ, उन्होंने एक सेट की स्थापना की जिसका नाम था महानुभव। महानुभव सेट, महानुभव संप्रदाय, राइट? जो भी उनसे जुड़ता था वो कौन से संप्रदाय में आते थे? महानुभव संप्रदाय। उनके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई या जो कुछ भी उन्होंने लोगों को सिखाया, वो एक बुक में लिखा गया। उस बुक का नाम है लीला चरित्र। Whatever incident took place in his life are written in a book called Leela Charitra. Okay, so you have to keep this Mahanubhav saint and the book name Leela Charitra in your mind, because this is asked as an objective question. Leela Charitra and Mahanubhav saint. Santa Namdev. This is the picture given in your textbook of Sant Namdev, and this is a picture of God Vitthal. Sant Namdev was a great devotee of Vitthal. He lived in the village Narsari. He composed numerous songs in praise of God, performed kirtans, songs and stories based on a religious theme everywhere, and brought about a general awakening among the people. He moved all over Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God. He instilled in them the desire to protect their religion. Sant Namdev later traveled all over India spreading the message of humanity. He traveled to Punjab and spread the message of equality among the people there. He composed songs in Hindi. Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of Sikh. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. The next Sant is Sant Namdev. So Sant Namdev was a great devotee of God Vitthal. Devotee matlab bhakt, param bhakt the. He lived in village Narsari in Maharashtra. Okay, so these two are the objective question, the name of the village and the name of the god you have to keep in the mind. Sant Namdev composed many songs in praise of gods. This means what? संत नामदेव ने बहुत सारे गाने लिखे, भक्ति गीत हम बोल सकते हैं, लिखे जो आज भी फेमस है. उन्होंने बहुत सारी जगहों पर कीर्तन भी किए. कीर्तन क्या होता है पता है? कीर्तन में एक स्टोरी बोली जाती है, लेकिन बीच बीच में गाने भी बोले जाते हैं, स्टोरी के टाइप. मतलब जैसे हम बोल सकते हैं स्टोरी गाने के फॉर्म में बोली जाती है. वो जो स्टोरी होती है वो रिलीजियस बेस होती है, जिसमें कोई कथा होती है, भगवान की कथा, महाभारत से कथा, रामायण से कथा या गीता का कोई पाठ या उपदेश उसमें इंक्लूड होता है. ओके, तो बेस ऑन द रिलीजियस थी. वो जहाँ पर भी गए उन्होंने कीर्तन किए,
गाने लोगों को सुनाए, भक्ति गीत लोगों को सुनाए। और ये सब करते समय उन्होंने लोगों में एक जनरल अवेकनिंग मतलब एक लोगों को किसी चीज़ के बारे में जागरूक किया या लोगों को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, अवेयर किया जहाँ पर भी वो गए। ही ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड ऑल ओवर द महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में घूमे हैं वो, और उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया, भागवत धर्म का प्रचार किया। जैसे हमने देखा पहले जो संत थे हमारे श्री, यस यू आर राइट, श्री चक्रधर स्वामी, उन्होंने क्या स्थापना की थी? महानुभाव, राइट, महानुभाव सेट की स्थापना की थी, वो उन्होंने पंथ की स्थापना की थी। वैसे ही संत नामदेव जी ने किस धर्म की स्थापना की या किस प्रथा को चालू किया? उन्होंने भागवत धर्म, ओके। और उन्होंने सबको क्या सिखाया? टू शो डीप डिवोशन टू द गॉड। और लोगों में उन्होंने एक भावना जागृत की, डीप डिज़ायर, इंस्टेंट मतलब जागृत करना, डीप डिज़ायर मतलब भावना या इच्छा जागृत की। किसकी इच्छा जागृत की? लोगों में अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करो, राइट। और बाद में महाराष्ट्र में तो वो घूमे, लेकिन बाद में वो पूरे हिंदुस्तान में भी घूमने निकले, और घूमते घूमते वो जा पहुँचे पंजाब में। पंजाब में भी उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का भी उन्होंने संदेश दिया पूरे भारत को, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे वो गए। ह्यूमैनिटी मतलब क्या? मानवता धर्म सिखाया, लोगों से सहानुभूति रखो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, राइट, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दो, ये उन्होंने सिखाया, इक्वालिटी के बारे में सिखाया। और उन्होंने सिर्फ मराठी में ही गाने या कीर्तन्स नहीं लिखे, उन्होंने भक्ति गीत हिंदी में भी लिखे, राइट, मतलब वो हिंदी भी अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उन्होंने हिंदी में भी बहुत सारे गाने लिखे। और उनके जो पंक्तियाँ हैं या उन्होंने लिखी हुई कविताएँ या भक्ति गीत है, उसमें से कुछ लाइनें जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में शामिल की गई है, विच वॉज द होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें उनके लिखे हुए गानों की या भक्ति गानों की पंक्तियाँ इंक्लूड की गई है। और संत नामदेव जी के कीर्तन्स आज भी महाराष्ट्र में या भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वो घूमे हैं या जहाँ जहाँ संत नामदेव को लोग जानते हैं, वहाँ पर उनके लिखे हुए गाने और कीर्तन आज भी लोग बड़ी भक्ति भाव से सुनते भी हैं और गाते भी हैं। संत ज्ञानेश्वर, अगेन दिस इज द पिक्चर ऑफ संत ज्ञानेश्वर given in your history textbook. Sant Jnaneshwar's family belonged to Appegaon. Nivruttinath, Sopandev were his brothers. Muktabai was his sister. Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a sannyasi. It happened like this. Their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying the orders of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. The narrow-minded religious leader did not think it right that a sannyasi should have children. People persecuted these children and banished them from their community. Sant Jnaneshwar. Sant Jnaneshwar belonged to Appegaon. This means the name of the village from where Sant Jnaneshwar came is Appega in Maharashtra. Sant Jnaneshwar had 2 brothers
Nivruttinath and Sopandev. One sister, Muktabai. These are the objective question. Name of the brothers of Sant Jnaneshwar and name of the sister of Sant Jnaneshwar. Also the name of the village. Now, Sant Jnaneshwar and his brothers were the children of a सन्यासी. सन्यासी मीन्स क्या? जो वर्ल्डली लाइफ, ये आपने देखा है ना, वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देते हैं, जो सन्यास लेते हैं, जो हम और आप जैसा नॉर्मल जीवन नहीं जीते, वन में रह के जीना, सादा जीवन जीते हैं. तो उनके पिताजी सन्यास लेकर वो सब कुछ छोड़कर चले गए. बट कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद अपने गुरु की आज्ञा को मानकर, ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, वो वापस घर लौट आए और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे. और उन्हें 4 बच्चे हुए. इन दोनों पति पत्नी को 4 बच्चे हुए. निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानेश्वर एंड मुक्ताबाई. तभी सन्यासी को बच्चे होना ये अच्छा नहीं माना जाता था. मतलब सन्यासी है तो वो उनको बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लाइफ छोड़ दी है. अभी वो सन्यासी की तरह रह रहे, सिंपल जीवन जी रहे, मुनि की जीवन जी रहे, तो उनको वापस आकर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, ऐसे तभी के लोगों का मानना था. वो इसे गलत समझते थे कि आप कैसे वापस आ सकते हो, आप कैसे वापस से नॉर्मल जीवन जी सकते हो, आपके बच्चे कैसे हो सकते. ये तभी के लोगों को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी. बिगटेड मेंस मतलब जो कट्टर धर्मवादी, जो धर्म को लेके बैठते हैं, जो समझते हैं कि धर्म ही सबसे बड़ा है और सबसे ऊपर है, ऐसे लोग जो थे उस टाइम में, दे लुक डाउन, मतलब वो इन बच्चों को हल्का समझते थे या उनकी तरफ मतलब हम बोल सकते हैं ना, बुरी नज़र से देखते थे कि ये तो सन्यासी के बच्चे हैं, इनको क्या, इनसे दूर रहो, राइट. ऐसे थे वो. तो अब ये जो 4 बच्चे थे, उनके लिए जो तभी के गांव में या अपने गांव में जो भी लोग रहते थे, वो बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे, राइट. द narrow minded religious leader did not think it right that a sannyasi should have children. तभी के जो narrow minded religious leader थे, जो भी पंडित होंगे या जो भी होंगे तभी के लीडर्स, जो वो समझते थे कि सन्यासी को बच्चे नहीं होने चाहिए. दे थिंक दैट द सन्यासी शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, इवन द सन्यासी शुड नॉट एंजॉय द नॉर्मल लाइफ लाइक अदर पीपल. वंस यू टेक अ सन्यास, then please leave everything and stay in the jungle or stay with your guru, but you are not allowed to live a normal life like a normal human being. So these people started persecuted मतलब क्या हुआ? The people persecuted these children. Persecuted means उनको बुरा भला कहने लगे, उनको कोसने लगे, राइट. उनको मतलब बुरी बातें उनके बारे में कहने लगे कि ये तो सन्यासी के बच्चे हैं, गाली देना, कर्स करना, राइट, किसी को बुरा भला कहना. और बाद में ऐसी हालत ही कि इन सभी बच्चों को, वो जो गांव में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव से उनको निकाल दिया. बैनिश्ड मतलब निकाल देना, बॉयकॉट किया, उनको उस जगह से या देश से बाहर किया, देश निकाला, हम ऐसे बोल सकते हैं, उनको देश निकाला दिया. फ्रॉम देयर कम्युनिटी, उनको कम्युनिटी से बाहर भेज दिया, राइट. तो ये इन 4 भाइयों की अब तक की कहानी थी, राइट. ये किसके बच्चे थे? 4 सन्यासी के बच्चे थे. उनके साथ गांव के लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते थे. वाई? बिकॉज दे वर द चिल्ड्रंस ऑफ सन्यासी, एंड एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द सन्यासी कैनॉट हैव चिल्ड्रन, द सन्यासी कैनॉट लिव अ normal life like other people. The people in their village were cursing them, were saying bad words for these children, and finally all the children were sent out of the village. Banished मतलब उनको गांव से निकाल दिया और गांव से या उनकी कम्युनिटी से बाइकॉट किया. उनको बोला अभी आप हमारी कम्युनिटी से आपका कोई भी रिश्ता नहीं है. अगर आज
समझ में आया यहाँ तक? Okay, let's read the next paragraph. Once Nanishwar went round the town begging for alms, but no one could give him any alms. He had to listen to abusive language instead. Young Naneshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. Muktabai came and knocked at the door. She said, "Open the door, Naneshwar. How can we remain drawn in our own sorrow? Who will then look into the welfare of the world?" These words of his sister gave new hope to Naneshwar. He forgot his personal sorrow and started his work. Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion. Naneshwar went among the people and taught them to have faith in God, give equal treatment to all, help those in trouble, and allay their misery. This was the gist of his advice to the people. Naneshwar's words are heard in every nook and corner of Maharashtra for last 700 years. Before I explain you the paragraph, I just like to tell one incident that happened in Naneshwar's life. जब वो छोटे थे एक चीज़ उनकी लाइफ में हुई थी, राइट? ये स्टोरीज़ में मैंने भी स्टोरीज़ में पढ़ा है, राइट? जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता एक रात को इन सभी चारों के चारे बच्चे जब सो रहे थे तब इन बच्चों को छोड़ के वो चले गए, राइट? मैंने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें ऐसा बताया कि उन्होंने जल समाधि ली, राइट? उन्होंने गांव के बाहर जो नदी थी उसमें उन्होंने समाधि ली. अब पहले से ये बच्चे सन्यासी के थे, इसीलिए गांव के लोगों ने उन्हें तंग किया, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, राइट? और सन्यासी मतलब एक मुनि तपस्वी, ऐसे लोग दूसरा काम नहीं करते. उनको अगर वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न कर सकते हैं या उनको वो खाना कैसे अपने लिए जमा कर सकते हैं, सिर्फ भिक्षा मांग के. ओके, सिर्फ भिक्षा मांग के. 5 घर या 11 घर, ज़्यादा घर नहीं. अगर गांव में ज़्यादा घर भी है तो भी वो 5 या 11 घर में ही भिक्षा मांगेंगे. और अगर किसी भी घर में अगर उनको भिक्षा नहीं मिलती, सपोज़ 11 घर में उनका नियम है कि 11 घर में हम भिक्षा मांगेंगे, और अगर 11 के 11 घर में अगर उनको भिक्षा नहीं मिलती है ना बच्चों, तो ऐसा नहीं कि वो 12वें घर में जाएंगे या 12th घर में जाके भिक्षा मांगेंगे. नहीं, अगर आज के दिन उनको भिक्षा नहीं मिली तो फिर वो कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसे ही भूखे सो जाएंगे, राइट? तो एक दिन जब ज्ञानेश्वर जी अपनी भिक्षा की झोली लेकर, ओके, सन्यासी को आपने देखा होगा बड़ी सी कपड़े की झोला बनाते हैं या उसको झोली बोलते हैं, वो लेकर निकल पड़ते. ओके, सो वन डे व्हाट हैपन, ज्ञानेश्वर जी वेंट अराउंड द टाउन. वो अपने गांव में भिक्षा मांगने के लिए चले गए. फॉर बेगिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स मतलब भिक्षा. ओके, तभी पता जो सन्यासी थे वो कैसे बोलते थे, भिक्षाम देई माँ भिक्षाम देई, ऐसे करके वो दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे. 3 बार बुलाएंगे. अगर कोई लेडीज़ आती है तो वो थाली में या तो चावल दाल जो भी अनाज है, फिर चाहे वो कच्चा अनाज हो या पका हुआ खाना हो, रोटी हो, भाकरी हो, सब्ज़ी हो, वो उनके झोले में डाल देती थी, राइट? तो ऐसे वो भिक्षा मांगने के चले गए. बट उस दिन उनको भिक्षा नहीं मिली. उनको उस दिन लोगों के ताने मिले. अब्यूसिव लैंग्वेज मतलब बैड वर्ड्स, ताने सुनने मिले लोगों को. लोगों ने बहुत ही उनको बुरा भला कहा. बैड वर्ड्स, बैड लैंग्वेज. इंस्टेड ऑफ भिक्षा, इंस्टेड ऑफ फूड, उनको क्या मिला? लोगों के बैड वर्ड्स सुनने मिले. यंग, तभी ज्ञानेश्वर जी बहुत छोटे थे, यंग ज्ञानेश्वर थे, छोटे थे, बच्चे थे. वो
लोगों के इस बर्ताव से काफ़ी दुखी हुए। एंड ही केम इन टू हिज हट, उनकी झोपड़ी में आ गए वो, और अंदर से खुद को उन्होंने बंद कर लिया और अपने दुख में वो रोने लगे, या दुख के बारे में या जो कुछ हुआ उसके बारे में वो सोचने लगे। ग्रीव्ड ओवर हिज लॉर्ड, ग्रीव मतलब दुख प्रकट करना या दुखी होना। ओके, तभी मुक्ताबाई, उनकी जो बहन थी, वो आई। उन्होंने देखा कि अपना भाई झोपड़ी के अंदर दरवाज़ा बंद करके रो रहा है, बहुत ही कष्ट हो रहे उसे, बहुत ही उसकी आत्मा को दुख पहुंचा है। तभी मुक्ताबाई ने उनसे कहा, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन यू रिमेन ड्रॉन इन योर ओन सॉरो, हु विल देन लुक इन टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने सिर्फ अपने भाई से ये कहा, दरवाजे को खटखटाए हुए, भाई आप दरवाज़ा खोलिए, ज्ञानेश्वर जी दरवाज़ा खोलिए। अगर आप खुद अपने दुख को लेकर रोते बैठोगे, अपने दुख के बारे में सोचोगे, तो फिर जिस जन कल्याण कार्य करने के लिए, जो जन कल्याण का कार्य हमें करना है, जन कल्याण वेलफेयर मतलब जन कल्याण का कार्य जो हमें करना है, वो हम कैसे कर पाएंगे? हम इस दुनिया को कैसे दुख दर्द से दूर करेंगे अगर हम खुद के ही दुख दर्द के बारे में सोचेंगे तो। दिस वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। ये बात सुनकर ज्ञानेश्वर जी को बहुत, मतलब वो जो अपने दुख में थे वो दुख से बाहर आ गए। अचानक से उनको लगा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे दूसरों के बारे में सोचना। उनकी बहन के इन वाक्यों से उन्हें एक नई ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली। वो बहुत इंस्पायर हुए और वो अपने काम में लग गए। ही स्टार्टेड वर्किंग। ओके, उन्होंने अपनी पर्सनल सॉरो मतलब पर्सनल दुख दर्द को साइड में रखा। नहीं, अब मैं अपने दुख दर्द के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। उस ज़माने में लोगों को जाति के ऊपर, जन्म के ऊपर, उनकी परिस्थिति के ऊपर, मतलब अमीर या गरीब, ऐसे लोगों को बांटा जाता था। और जो मोस्टली पिछड़े जाति के थे, जो गरीब थे, राइट, उनको तभी के जो उच्च जाति या उच्च कुल के लोग थे वो हमेशा उनको दबा के रखते थे, उनको डरा के रखते थे। मतलब उनको जीने का मतलब हक नहीं दिया गया था। उनको सिर्फ गुलाम बनना है या उनको हमेशा झुक के रहना है, राइट, ऐसे उनको बर्ताव मिलता था। बहुत बोलते ना अमानवीय ट्रीटमेंट उनको मिलती थी, ऐसे उनके साथ बिहेव होता था जो लोग। और ये सब धर्म के नाम पे होता था, वो सब धर्म के नाम पर। अगर आप पिछड़ी जाति को हो तो आपको ऐसा ही बिहेवियर है, आपको इधर से ही जाना है, आपके घर इसी एरिया में होंगे, आप ब्राह्मण के एरिया में या उच्च जाति के एरिया में नहीं आ सकते। ये सब बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे, राइट। तो ये सब तब चलता था। और ज्ञानेश्वर जी ने ये सब देखा तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप भगवान पे विश्वास रखो, हैव फेथ इन गॉड और गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ भेदभाव करो, आप दूसरों को इक्वल ट्रीटमेंट दो, राइट, ऐसा उन्होंने सिखाया। एंड उन्होंने जो पंडित थे या तभी के ब्राह्मण थे, उनको भी उन्होंने यही सिखाया कि देखो, आप उच्च जाति में जन्म में हो, आप ब्राह्मण हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करो, राइट। ही ऑल्सो एडवाइज पीपल टू हेल्प दोज हु आर इन ट्रबल, जो मुश्किल की घड़ी में है या जो किसी दुख में है, मुसीबत में है, उनको हेल्प करो। एले देयर मिसरी, एले मतलब रिड्यूस करना, कम करना, ओके। एले देयर मिसरी, मिसरी मतलब उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा या उनकी गरीबी को कम करने की कोशिश करो। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, अगर आप अच्छे खासे, आपके पास कुछ है जो आप चैरिटी कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ करो ताकि किसी का दुख कम हो जाए। एले देयर मिसरी।
दिस वॉज द जिस्ट ऑफ हिज एडवाइस, ये उनके एडवाइस का या ये उनके उपदेश का मेन मंत्र था, मूल मंत्र था. वॉट? ट्रीट एवरी वन इक्वल, हेल्प दोज हु आर इन ट्रबल एंड एले देयर मिसरी. आज भी ज्ञानेश्वर जी ने जो कुछ बातें बोली थी हमें, वो महाराष्ट्र में हर एक जगह पर वो बातें सुनी जाती है, उनकी कहानियाँ बोली जाती है, उनको लोग भगवान मानते हैं. राइट? तो ज्ञानेश्वर जी आज से 700 ईयर्स बिफोर, लेकिन फिर भी आज हम ज्ञानेश्वर जी को भगवान की तरह पूजते हैं, गुरु की तरह उनकी पूजा की जाती है. राइट? तो ये सब हमने इस पैराग्राफ में सीखा. एक इंसिडेंट, उनके लाइफ का जो इंसिडेंट था वो इस पैराग्राफ में सिखाया गया है, और कैसे ज्ञानेश्वर जी ने बचपन में ही ये उनको ज्ञान हुआ कि हमें किस कार्य के लिए भगवान ने धरती पर भेजा है. लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. In those days, all religious teaching was confined to Sanskrit book. The language of ordinary people in everyday use was Marathi. Jnaneshwar wrote his outstanding book Jnaneshwari in Marathi. He thus opened wide for his people the doors of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all men. At a very early age, at Alandi near Pune, Jnaneshwar took samadhi, that is, putting himself in a trance from which he never came out. Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi Pandhari with devotion. Before explaining this paragraph, I will like to tell one small story, which is one of a incident in Jnaneshwar's life. Okay, Sant Jnaneshwar's life. In those days, there was a village in Maharashtra named Paitan. It was a village of scholars. ऐसा माना जाता था कि तभी के जितने भी पंडित थे, जितने भी ज्ञानी विद्वान थे, सब पैठन में रहते थे. So all these 4 children went to Paitan to gain some knowledge, right? To gain some knowledge. But the scholars, the bigoted men of that time, bigoted का मतलब पता है ना? हाँ, कौन से? जो रूढ़िवादी है, जो धर्म को पकड़ के चलते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते, राइट? वैसे लोग वहाँ पर थे. उन सभी ने ज्ञानेश्वर जी का मजाक उड़ाया. क्या कहकर? सन्यासी के बच्चे. आप सब सन्यासी के बच्चे हो, आपको ये शोभा नहीं देता. सबसे पहले तो आप सन्यासी के बच्चे हो, और सन्यासी को बच्चे हो नहीं सकते, तो आपको कुछ भी नॉलेज गेन करने का हक नहीं है, राइट? ऐसे करके उनको वहाँ के पंडितों ने निकालना वहाँ से, मतलब उनकी सभा से उनको निकाल दिया, राइट? तो तभी एक पंडित ने कहा, तभी ज्ञानेश्वर जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा मत करो, विद्या पर सबका हक है. फिर चाहे वो सन्यासी हो या सन्यासी के बच्चे हो, कोई पंडित का बच्चा हो या कोई पिछड़ी जात का बच्चा हो, सभी बच्चों का या सभी लोगों का, सभी प्राणी मनुष्य का विद्या पर बराबर का अधिकार है. तो तभी उसमें से एक पंडित उठ गया. उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या इतना छोटा सा बच्चा है, हमको ज्ञान सिखाएगा? कौन है ये सन्यासी का बच्चा, हमें इतनी ज्ञान सिखाने का किसने उसको अधिकार दिया? तो उस पंडित जिसको गुस्सा आया, उसने एक बफेलो, या हम जिसको बोलते हैं ना, उसे बफेलो ही कहा जा सकता है उसको इंग्लिश में, लेकिन मराठी में उसको रेडा. ओके, मेल बफेलो था. एक मेल बफेले को लेकर एक किसान जा रहा था उस रास्ते से. तो उस पंडित ने उसको रोका, ये यहाँ पर आ. और ज्ञानेश्वर जी को कहा, तू बहुत पंडित बन रहा है ना, इस
बफेलो या इस रेड़े के मुंह से हमको वेद पाठ सुना, अगर ये बोल सकता है तो फिर हम तुझे मानेंगे कि तू सच्चा पंडित है या तुझ में कुछ बात है करके। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा ठीक है। ज्ञानेश्वर जी ने उस बफेलो के सिर पे हाथ रखा और वेद पठन का उच्चारण उन्होंने शुरू किया। तभी पंडित, दूसरे पंडित आए, बोले कि चुप, तू बोल नहीं सकता है, तू ये जो मंत्र बोल रहा है या जो भी तू भगवान के नाम स्मरण कर रहा है ये तू नहीं बोल सकता। उनका फटाक से किसी पंडित ने आके मुंह बंद कर लिया, और जैसे ही उनका मुंह बंद किया, वो जो बफेलो था, मेल बफेलो था, रेड़ा, वो मंत्र उच्चारण करने लगा। ये देखकर सभी पंडित आश्चर्यचकित हुए। जो उनको अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे या उनका तिरस्कार कर रहे थे, सभी ने उनके चरण स्पर्श किए, सभी ने ज्ञानेश्वर जी को भगवान का अवतार माना। राइट। उसी दिन से ज्ञानेश्वर जी ने ये ठान लिया, मतलब उस इंसिडेंट से ये सबके ध्यान में आया कि ज्ञानेश्वर जी जो छोटे दिखते हैं, लेकिन वो छोटे नहीं है, वो एक भगवान का अंश है। क्योंकि ऐसा चमत्कार, एक एनिमल के मुंह से वेद मंत्र बोलना या उसके मुंह से वो वेद मंत्र बाहर आना, वो बहुत ही चमत्कार था। राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने करके दिखाया, तो सभी ने उनको भगवान का रूप माना। और इसी इंसिडेंट से ज्ञानेश्वर जी ने सीखा, अब विद्या सबको मिलनी चाहिए, सबको ज्ञान बराबर का ही मिलना चाहिए। फिर चाहे वो पंडित के घर में पैदा होने वाला बच्चा हो या किसी शूद्र या पिछड़ी जाति के घर में पैदा होने वाला बच्चा हो। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, ये पैराग्राफ में बताया गया। आ गई आपको स्टोरी समझ में कि ज्ञानेश्वर जी ने क्यों ज्ञानेश्वरी लिखी, या इस पैराग्राफ में वो आपको स्टोरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो स्टोरी बताई है। ठीक है। तो ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि सभी बुक संस्कृत में है, और तभी जो संस्कृत लैंग्वेज थी ना, इट वॉज नॉट कॉमनली यूज लैंग्वेज। आज भी कहाँ हम संस्कृत यूज़ करते हैं, हम स्कूल्स में संस्कृत पढ़ते हैं, बाद में डेली लाइफ में हम संस्कृत यूज़ नहीं करते। राइट। वैसे संस्कृत जो तभी थी वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी, मतलब जो पंडित है, जो पूजा पाठ करते हैं, या जो क्षत्रिय है, जो उच्च जाति में जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए संस्कृत लैंग्वेज है। और जितने भी वेद पुराण है, रामायण महाभारत, जो भी भगवान से रिलेटेड बुक्स थी, वो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। तो ज्ञानेश्वर जी ने सोचा, जब ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज है, डे टू डे लाइफ जो है महाराष्ट्र की मराठी है, तब संस्कृत में बुक होके क्या मतलब है, मतलब है कुछ बनेगा नहीं ना। इसीलिए फिर उन्होंने जितने भी बुक्स थे उसमें से थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो इम्पोर्टेंट था, वो नॉलेज उन्होंने एक बुक में लिखा, गैदर किया, और उसको नाम दिया ज्ञानेश्वरी। राइट। तो ज्ञानेश्वरी आज भी लोग उसे भगवत गीता की तरह ही पूछते हैं। बहुत सारे जो विट्ठल भक्त हैं या जो वारकरी पंथ से बिलोंग करते हैं, वो ज्ञानेश्वरी को अपने घरों में पूजते हैं। ज्ञानेश्वरी जो बुक है उसको पूजा जाता है, उसको भी गीता की तरह ही बराबर का सम्मान दिया जाता है महाराष्ट्र में। तो ज्ञानेश्वरी लिखने से क्या हुआ, जो ज्ञानेश्वरी लिखने से ज्ञानेश्वर जी ने जो नॉलेज के डोर्स थे, जो विद्या की दरवाजे थे, वो सभी कॉमन लोगों में खोल दिए। अब हर कोई जो वेद में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसे पढ़ सकता था और उसे समझ सकता था। और उन्होंने एक आइडल ऑफ ब्रदरहुड की भी शिक्षा दी। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, मिलजुल के रहना कैसा चाहिए, वो भी लोगों को सिखाया। ज्ञानेश्वर जी जब 17 ईयर्स, ऑलमोस्ट 17 या 16 ईयर्स के होंगे, बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने आळंदी करके गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ पर समाधि ली। व्हाट डू मीन बाय समाधि? अ मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है समाधि का। पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। मतलब खुद को एक ऐसी मनस्थिति में या एक ऐसी स्थिति में लेके जाना जहाँ से फिर हम वापस नहीं आ सकते, या हमें पता ही नहीं चलता कि
आसपास क्या हो रहा है, एक डीप मेडिटेशन में वो चले गए और उन्होंने समाधि ली, राइट। आज भी 11th डे, ओके, ऑफ द मंथ, हिंदू मंथ आषाढ़ और कार्तिक, ये हिंदू मंथ है, हिंदू मंथ है। आषाढ़ और कार्तिक की मंथ, कार्तिक मंथ के 11th डे, 11वें दिन में आज भी बहुत सारे लोग बोलने से अच्छा बोल सकते हैं पिलग्रिम्स, वारकरी, मराठी में उसे वारकरी कहते हैं, या हम भक्तजन कह सकते हैं हिंदी में। वारकरी ये शब्द बहुत फेमस है मराठी में। तो वारकरी जो है आळंदी और पंढरी जाते हैं ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए। अगर आप पंढरपुर गए और आळंदी नहीं गए ना, तो आपकी पंढरपुर की यात्रा सफल मानी नहीं जाती। तो जो भी पंढरपुर जाता है, चाहे वो पहली बार गया हो या बहुत बार गया हो, आळंदी ज़रूर जाएगा, राइट। तो आज भी बहुत सारे भक्तजन, बहुत सारे वारकरी, लाखों की संख्या में 11th डे ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक पंढरपुर और आळंदी जाते हैं। होप आपको ज्ञानेश्वर जी की ये कथा और ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आई विल लाइक टू स्टॉप एट दिस नोट बिकॉज दिस लेसन इज़ वेरी बिग। ये लेसन बहुत बड़ा है, एक इसमें कंप्लीट करना, एक पार्ट में कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपको भी ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ। सो इट्स बेटर आई स्टॉप हियर। I will make a second part of this lesson, okay, and I will upload for you. So that's all for today. I hope you understood it. Take care. Bye bye to all. Thank you very much.